guys, welcome back to my channel. And whoever is new, let me give a short introduction that my name is Jyoti Rajput and this channel is all about books. So without any further ado, let's get started on today's topic, that is beginners friendly books. So if you're a beginner, you would think which kind of a books you should read, or uh, there are so many books, which books you should start with. So I'm here to give you some recommendation, and if you like them you can start with them. It's a very beginner friendly. उनका writing style बहुत basic है, you would understand everything. कोई ऐसे difficulty नहीं होगी. Starting with our first book, that is The Silent Patient. This is a thriller book and it's about a lady Alicia who murdered her husband 6 years ago. So basically they were married for a 7 year, or they were a happy loving couple, but after 7 years what happened that she murdered him, and after murdering him she went silent, like she didn't spoke a single word since that day. So after 6 years, a psychiatrist has been appointed to talk with her and to understand her कि what is the matter, और क्या कहते हैं ऐसा उसने क्यों किया कि वो इतने साल से मैरिड थे, सब कुछ थे, तो एकदम से ऐसा क्या हुआ कि उसने उसका मर्डर कर दिया, और उसके बाद शी जस्ट वेंट साइलेंट, अ पिन ड्रॉप साइलेंस ऑन हर माउथ. तो आई होप यू विल लाइक इट. आई लव दिस बुक. इट्स अ वेरी गुड बुक एंड द एंडिंग इज सो ऑसम. आई वॉज लाइक द माइंड ब्लोन कि हाउ इज़ दिस इवन पॉसिबल कि ये चीज़ है. तो I hope you will also like it. Next book is Better Than the Movies by Lynn Painter. So basically it's a book about Liz and Wes, जो कि neighbor होते हैं, but they always fight. Like Liz don't like Wes that much, she always fight with him. But one day what happened कि Liz का एक क्रश उसके स्कूल में आता है एंड शी वॉन्ट्स टू बी विद दैट पर्सन. तो उसको पता लगता है कि वो वेस का बहुत अच्छा दोस्त है. तो व्हाट हैपन कि शी वेंट टू वेसेस हाउस एंड आस्क्ड फॉर हिज हेल्प कि वो उसको इंट्रोड्यूस करे उससे, या कुछ भी ऐसे करे कि लिस अपने क्रश के साथ क्लोज हो सके, क्योंकि शी वॉन्ट्स टू बी विद दैट पर्सन. But as they stays together for this mission, she gets to know that Wes is also a very good guy and she likes him also. Like कि वो इतना बुरा नहीं है जितना वो हमेशा सबको दिखाता है और वो सब. तो it's basically a cute short love story that you will like. It's a proper rom-com that you will love to read, and I really love this book as it's so cute. You should read it. It's just a cute book. So our next book is The Cheat Sheet by Sarah Adams, and it's basically about childhood best friends, that is Bree and Nathan, where Nathan is a very famous footballer. तो क्या कहते हैं वो दोनों बचपन से साथ हैं and they both fall in love with each other, बट दे ऑलवेज थॉट कि क्या कहते हैं अगर हम एक दूसरे को एक्सप्रेस करेंगे या कुछ हो तो शायद दूसरा पर्सन हमें उस तरीके से नहीं देखता है एंड देयर फ्रेंडशिप विल बी रूइंड. तो दे केप्ट देयर फीलिंग्स टू देमसेल्व्स. बट वन डे दे बोथ वेंट फॉर अ इवेंट एंड देयर ब्री said random things in front of a reporter. So the next day reporter published that things and everybody is like they are so cute and everything. So for the publicity event, Bree and Nathan start dating. तो जैसे ही उन्होंने डेट करना स्टार्ट किया, नेथम फाइंड इट अ काइंड ऑफ अ मूव कि उसको शायद अब धीरे धीरे ब्री के सामने आना चाहिए. तो ही मेड अ चीट शीट कि हाउ शी विल लाइक हिम, कि उसको क्या क्या करना चाहिए कि डिनर डेट पे जाए या कभी हम बाहर वॉक कर रहे हैं तो होल्डिंग हैंड्स एंड एवरीथिंग. तो ही मेक अ चीट शीट विथ हिज फ्रेंड्स एंड he did all those things in this book. And if you want that romance to be read childhood lovers to childhood friends to lovers, you can go for it. This book is A Good Girl's Guide to Murder by Holly Jackson. तो बेसिकली ये एक लड़की है पिपा जिसको स्कूल प्रोजेक्ट मिला होता है. तो बेसिकली उसने अपने टाउन में एक मिस हैपनिंग जो हुई है 5 years पहले, दैट इज़ कि एक लड़की थी एंडी बेल हु गॉट मर्डर्ड बाय हर बॉयफ्रेंड साल सिंह. बट
पीपल डिडेंट बिलीव दैट थिंग कि साल ने एंडी का मर्डर किया है या कुछ. शी ऑलवेज थॉट कि उनके पीछे कोई बहुत बड़ा रीज़न है, बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो किसी को पता नहीं है. तो फॉर हर क्यूरियोसिटी शी स्टार्टेड investigating that case for her project, and as the case goes by उसको बहुत सारी चीज़ें पता लगती है कि क्या हमारे टाउन में क्या क्या मिस्ट्रीज़ है जो किसी को नहीं पता है, जो पता होनी चाहिए सबको. तो she started this investigation. As the investigation goes by, you will love this book. Starting it kinds of a boring, like you have to go by, it's a slow paced book, but after a while you will love this book कि क्या क्या हो रहा है. and the best thing it all is कि यहाँ पे देखो टेक्स्ट्स वगैरह मिलेंगे, मैसेजेस मिलेंगे, उसका जो उसने विजन बोर्ड बनाया है कि कैसे मर्डर हो रहा है, क्या हो रहा है, सब कुछ दिखेगा. तो आई एम श्योरली टेलिंग यू कि यू विल लव दिस बुक. इट्स अ ईजी राइटिंग, इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, आराम से पढ़ सकते हो, सब कुछ है. तो आई होप यू. माई नेक्स्ट बुक इज़ बिफोर वी वर स्ट्रेंजर्स बाय रेने कार्लिनो, एंड इट्स अ सेकेंड चांस रोमांस बुक. इट्स अ स्टोरी अबाउट मैट एंड ग्रेस. तो एक दिन क्या होता है, मैट अपने काम करके घर जा रहा होता है, बट उसने सबवे में एक लेडी को देखा, एंड ही इज़ लाइक कि वो जो देख रहा है कि वो रियल है या नहीं. तो एक्चुअली आफ्टर अ वाइल दैट लेडी टर्न्स बैक एंड मैट उसको देख के शॉक हो जाता है बिकॉज इट्स द गर्ल ही इज़ थिंकिंग अबाउट, दैट इज़ अ ग्रेस. तो वो 15 ईयर बाद उसको देखता है एंड ही इज़ लाइक वंडरिंग कि उसको उससे बात करनी है, सब कुछ. बट द सबवे स्टार्ट मूविंग. नेक्स्ट डे व्हाट ही डिड कि वो ऑनलाइन जाता है कोई साइट पे, कि वो कुछ ऐसे डिस्क्रीट साइट होती है, वहाँ पे कोडेड लेटर भेजता है कि इफ़ शी एवर सॉ इट शी विल कॉन्टैक्ट हिम. एंड पूरा स्टोरी चलता है. फिर क्या कहते हैं, उनका एक्चुअल में वो लड़की कौन थी, इसका क्या कनेक्शन है उसके साथ, सब कुछ है. कि वो 15 ईयर्स पहले कॉलेज में मिले होते हैं, दे फॉल इन लव विद ईच अदर, बट बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टांसिस दे ब्रोक अप. और वो क्या सर्कमस्टांस होते हैं, क्या चीज़ होती है, उन्होंने क्यों ब्रेकअप किया होता है, इट गोज़ फोर्थ एंड फ्रंट की प्रेजेंट लाइफ दिखा रहे हैं, पास्ट लाइफ दिखा रहे हैं, एंड एवरीथिंग गोज़ विद द फ्लो. एंड यू विल वंडरिंग, यू विल ऑलवेज वंडरिंग कि क्या हुआ, कैसे हुआ, बिकॉज दे वर सो क्यूट टुगेदर, लाइक क्यूट कपल, लाइक कॉलेज कपल जो एक दूसरे से ऐसे प्यार में पागल है, एक दूसरे की उनकी दोस्ती इतनी ऑसम होती है, सब कुछ. एंड वट एवर द रीज़न इज़ दैट इज़ एंड एंडिंग जो इस बुक की है वो बहुत अच्छी है. जो इन्होंने एंड दिखाया, लाइक इट विल नेवर बी अ पार्ट कि आप सोचो कि ऐसा अच्छा ठीक है ये हो गया. हाँ, तो मेरे को अच्छा लगा. आई होप यू विल ऑल्सो लाइक इट इफ़ यू स्टार्ट रीडिंग इट. यू कैन गिव इट अ ट्राई. इट्स अ वेरी गुड बुक. यू विल नॉट get bored while reading it, so please give it a try. So these are all the books that I recommended you right now, and I hope you will love to read them and give them a try. If you are a beginner, I am surely saying ki you will love them, and they are very good. You have thriller option, you have romance option, you can go whatever you want to read, and I hope you will love reading. This is it. Thank you for watching. Bye bye.